afternoon to everyone present in this webinar. I'm Pranjali from fourth year Architecture SVIT. I coordinate the for the day, which Brijesh as our extended all attendees in this webinar. Now let's come up with various COVID-19 pandemic like landscape architecture, urban architecture, GIS, present financial architectural education, insights into real estate valuation, and alumni continuing with alumni series. Today we have architect Brijesh to share insights on I think there how is a network issue. Uh, give us a glimpse of our college. No your problem. No voice problem. is not clear. Thank you, Pranjali. On behalf of SA Alumni Association, I would like to welcome Brijesh on this online webinar platform. Our alumni have brought glory to our institute in so many ways. They have set examples of being successful and good human being. I extend my warm regards to every member of our alumni present in this webinar. I also acknowledge the presence of our principal sir, Ragnesh sir, Ashwin sir, Pallay ma'am, Vigna ma'am, and all the faculties of COSVIT Vaasa. The main intention of this alumni webinar series to promote healthy interaction between our alumni and young students. Before I give platform to Brijesh, I would like to show glimpse of our college. Thank you, Taha sir. I would like to take this opportunity to introduce architect Brijesh Mistry. Sir is SVIT alumni, has completed his PR in 2017 and has professional experience with architect Yashwant Mistry. He is interested in tiny details to make in models. He is inspired for model making since his childhood and has done many school projects. He is inspired and guided by his father. He has enhanced his model making skills from Ahmedabad-based professional model maker. He has made many of his seniors' thesis models and did many experiments with various materials for exploration. It is his hobby and a part-time business. He is currently working as head of the department at RMS Polytechnic, Vadodara.
It is my sheer pleasure and absolute honor to welcome architect Brijesh Mistry to this virtual platform. The dais is yours, sir. Thank you, Pranjali, and uh, thank you, SVIT, and every my teachers and faculty members and friends. So I'm sharing my screen. Model making, a handcraft skill and art. मॉडल मेकिंग सबको पता ही है कि मॉडल बनाना कितना इम्पोर्टेंट है आर्किटेक्चर फील्ड में, राइट? सो इट इज माय हॉबी एंड I like to make models. So I will share my some experience and some tips for your model making. Scale it down. Model making is actual construction. जैसे हम साइट पे काम करते हैं कि कौन सी चीज कैसे होगी पूरी डिटेल में, वैसा ही ये एक छोटा कंस्ट्रक्शन है। इसमें भी हमको सब डिटेल्स पता होनी चाहिए तो हम अच्छे से मॉडल बना सकते हैं। हम समझेंगे आगे एग्जांपल के थ्रू कौन से टॉपिक्स है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडल मेकिंग, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स है, फिर टूल्स एंड मटेरियल्स है, कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्निक्स है, मॉडल फिनिशिंग कैसे करना है वो है, और थोड़ा वर्क है। सबसे पहले कोई भी चीज कर रहे हैं तो हमको उसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। तो आर्किटेक्चर में मॉडल का इम्पोर्टेंस क्या है? आर्किटेक्चर में कंपलसरी है, मॉडल मेकिंग करना कंपलसरी है। ये जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स है जो पढ़ रहे डिग्री कर रहे हैं उनको पता ही होगा, ठीक है। और अभी लेटेस्ट में क्या है कि वर्चुअल रियलिटी आ गई है, मतलब सॉफ्टवेयर में 3D बनाते हैं, बट जो चीज़ एक्चुअल फिजिकल मॉडल में है वो फील हम वर्चुअल रियलिटी में कोई सॉफ्टवेयर में नहीं ले सकते। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। इट इज अ 3 dimensional रेप्लिका ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द डिजाइन। आपकी डिजाइन क्या है, कैसी है, आप लाइव अपने आंखों के सामने रख के उसे सभी जगह से देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो कि क्या क्वालिटी हो रही है स्पेस की, क्या डिजाइन हो रही है, क्या मटेरियल हो रहा है, सब आपको फिजिकली आंखों के सामने पता चलेगा। मॉडल इज अ प्रोटोटाइप। हम कोई भी डिजाइन करते हैं तो हम डायरेक्टली अगर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो क्या होता है कि हमको पता नहीं होता कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, ठीक है। हमारे पास आइडियाज है, दिमाग में थॉट्स है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, बट जब तक वो चीज हमारे सामने नहीं आती तब तक हमको एग्जैक्टली आइडिया नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो हम अगर मॉडल बनाते हैं और फिर उसको देखते हैं, उसमें करेक्शंस करते हैं, मॉडल बनाने के बाद काफी आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि मॉडल बनाने के बाद आपको कुछ और नया आइडिया आया हो और उस आइडिया को आपने अप्लाई किया हो तो आपकी डिजाइन और भी बेटर बनी हो सकती है। तो इट इज लाइक दैट कि हमको प्रोटोटाइप, एक्चुअल डिजाइन को प्रोटोटाइप नहीं बनाना है। डिजाइन क्या बनने वाली है उसका पहले मॉडल बना के देखना है कि हाँ जो बन रहा है वो सही जा रहा है या कुछ इसमें चेंजेस की जरूरत है, प्रपोर्शन सही है, मटेरियल सही है, स्पेस सही है, सब कुछ हमको पहले से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर बन गया तो वो लाइफ टाइम तक जो यूज करने वाला है उसकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करने वाला है, तो हम ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो मॉडल इज कंपल्सरी, ठीक है।
प्लानिंग और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी यूज हो सकता है। अगर मॉडल मेकिंग है तो डिस्कशन भी अच्छे से हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को ज्यूरी में मॉडल बनाने को बोल रहे हैं तो इसका रीजन यही है कि आपकी जो डिजाइन है वो ड्राइंग्स के थ्रू हम एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या है वो नहीं समझ सकते अनलेस आपके पास मॉडल हो। आप लोगों को 3D बनाना आ गया, रेंडर करके व्यूज लगा दिए, बट फिर भी वो 2D ही है शीट के ऊपर। जब तक वो सामने नहीं आता तब तक एक्चुअल आइडिया नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अंदर। तो उसके लिए मॉडल कंपलसरी है और आपके टीचर्स आपको बोल रहे हैं मॉडल बनाने के लिए। ठीक है, और मॉडल बनाते बनाते हमको कई आइडियाज आते हैं। हो सकता है अपने डिजाइन कॉन्सेप्ट सेम रख के हमारी डिजाइन पूरी चेंज हो जाए, नया डिमेंशन मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। मॉडल मेकिंग की शुरुआत, मॉडल्स तो पहले से थे बट आर्किटेक्चर मॉडल्स नहीं थे। पहले के मॉडल्स कैसे यूज होते थे, गिफ्ट देने के लिए या ऐसा कुछ होता था। बट आर्किटेक्चर मॉडल की शुरुआत कहाँ से हुई, ये स्ट्रक्चर तो सबको पता ही होगा। फिलिपो ब्रूनेलिस्ची की डिजाइन है 15th सेंचुरी में। यहाँ पे उनको ये डोम का कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे जो लेबर्स थे उनको डिजाइन एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मॉडल बनाया था, वेरी फर्स्ट आर्किटेक्चर मॉडल। वहां से मॉडल मेकिंग की शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, आप लोगों को पता है, डिफरेंट डिफरेंट एराज आए। ठीक है, ये भी पता है आप लोगों को, सिडनी ओपेरा हाउस, इसमें भी ये स्केचेस और सेक्शंस के शीट थी और जो भी कंपटीशन के जूरर थे उनको पता नहीं चला कि ये कैसे वर्कआउट होगा, एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट होगा। तब आर्किटेक्ट जॉन जॉन ने ये ज्योमेट्री डिराइव करके इसका मॉडल बनाया था। डिफरेंट, ये तो हिस्ट्री की बात हुई। अभी डिफरेंट टाइप्स के मॉडल अभी है। तो कैसे कैसे मॉडल्स है, तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स होते हैं, फिर ब्लॉक मॉडल्स होते हैं, प्रेजेंटेशन मॉडल होते हैं। ठीक है, तो क्या है वो सब, तो कंसेप्चुअल मॉडल क्या है कि इट्स अ इनिशियल थॉट which helps you to go through your concept and develop your design, right? तो ये जस्ट एग्जांपल्स है कि किस टाइप के कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स हो सकते हैं। बेसिक डिजाइन में कुछ एक्सरसाइज करवा रहे तो वो भी कॉन्सेप्चुअल मॉडल में काउंट कर सकते हैं। मैंने ये प्रेजेंटेशन में ज्यादातर आर्किटेक्ट्स के वर्क को ही रखा है ताकि आप लोगों को है जिनका नाम है और जिनकी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी मॉडल बना के डिजाइन अप्रूव करते थे। ठीक है, ये सबको पता ही है, सैंटियागो कलाट्रावा का टर्निंग टॉर्सो, उसके जैसा ये स्कल्पचर है। कंसेप्चुअल मॉडल वन टाइप ऑफ स्कल्पचर भी हो सकता है। देयर इज नथिंग लाइक अ डिजाइन, इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ थॉट। ओके, दूसरा टाइप है ब्लॉक मॉडल। ये भी पता है, हम हमारा फर्स्ट रिव्यू या सेकंड रिव्यू होता है तो हमको टीचर बोलते हैं कि हाँ कैसा हो रहा है, कैसा मार्किंग हो रहा है, उसका मॉडल लेके आओ। तो वो मॉडल है ब्लॉक मॉडल, जहाँ पे सारी डिटेल हमको या तो पता नहीं होती, या तो वर्कआउट नहीं हुई होती, या ऑन प्रोसेस होती है। तो वो लेवल का जो डिटेलिंग है कि आपने क्या किया है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरऑल लुकआउट, उसको हम ब्लॉक मॉडल बोलेंगे। फिर है वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल में क्या होता है, एग्जैक्टली जो बनने वाला है, एग्जैक्टली जो साइट पे एग्जीक्यूट होने वाला है, वो एग्जैक्ट चीज आप रेप्लिकेट कर रहे हो मॉडल के थ्रू।
सेम मटेरियल, सेम कलर, सेम टेक्सचर, एवरीथिंग सेम, स्केल, मेजरमेंट, वो सब डिट्टो जो भी बनने वाला है वो ही बनाए हम मॉडल में, तो वो वर्किंग मॉडल है। बट हमको ये मॉडल की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको क्या है, ब्लॉक मॉडल की जरूरत है। और दूसरा इसके बाद है प्रेजेंटेशन मॉडल। प्रेजेंटेशन मॉडल में प्रेजेंटेशन मॉडल है तो वो क्या है, ब्लॉक मॉडल एंड वर्किंग मॉडल का मीडिएटर वर्जन है। मतलब डिजाइन हमारी फाइनल है, बट हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या चीज अंदर रखनी है, कैसे रखनी है, किस चीज का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, उस चीज को हमको कैसे हाईलाइट करना है। तो उसके हिसाब से हमको मॉडल का मटेरियल, कलर, टेक्सचर जो भी सब डिसाइड करना है वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये सब वर्किंग मॉडल्स हैं। ये वर्किंग मॉडल है टाइम्स ऑफ इंडिया का बिल्डिंग, ये एग्जीक्यूशन है और ये मॉडल है एग्जैक्टली सेम, ठीक है। दूसरे टाइप के भी मॉडल होते हैं ये चार के अलावा। सेक्शनल मॉडल होते हैं या तो फिर ओपनेबल मॉडल्स होते हैं, जहां पर हमको अंदर की भी डिटेल दिखानी है जिसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सपोज ये ऑडिटोरियम है तो हमको यहाँ पे अंदर की डिटेल देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ कैसे वर्कआउट हो रहा है अंदर। फिर ये है तो यहाँ से लाइट वेल है तो ये हमको पता चलेगा, राइट। ये पूरा सर्विसेज का नीचे से दिखाया है। तो ये सब अलग अलग कौन सी चीज हमको रिप्रेजेंट करनी है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि हमको कैसा मॉडल बनाना है और उसके लिए हम क्या कैसा यूज करेंगे। सेक्शनल मॉडल लुईस कान की डिजाइन है, राइट। फिर ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि मॉडल के टाइप्स कैसे होते हैं, क्या क्या होता है। अभी हमको मॉडल बनाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो हमको ड्राइंग की पूरे पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। 3D विजुअलाइजेशन करना होता है जो थोड़ा स्टार्टिंग फर्स्ट या सेकंड ईयर के बच्चों को डिफिकल्ट होता है। तो अगर वो लोग एक्चुअल मॉडल बना के देखे तो उनको क्लियर होता है कि क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो ड्राइंग भी चेंज कर सकते हैं या तो डिजाइन में भी वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग, यस। नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू। कोई मिस, हाँ, गलती से आवाज आया। ओके। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिटेल्स, आपको कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हो डिजाइन पे और कौन से लेवल की डिटेलिंग्स दिखानी है, उसके ऊपर आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये डिजाइन में मेरा ये पार्ट इम्पोर्टेंट है तो उसको हाईलाइट करना है। दूसरी बात है स्केल। तो मॉडल का स्केल, जैसे ड्राइंग हम स्केल पे बनाते हैं तो वैसे ही मॉडल का भी स्केल हमको डिसाइड करना पड़ता है। और ज्यादातर हम लोग ये प्रीफर करते हैं कि जो स्केल ड्राइंग का है वही स्केल मॉडल का हो, तो हम इजीली रिलेट कर सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर कटिंग के लिए टूल्स हैं। आई नो ये सबको पता होगा बट फिर भी मैंने रखा है। स्टीलेज, कुछ लोग मैंने देखा है कि कुछ लोग ट्राइंगुलर स्केल यूज कर रहे हैं कटिंग में, या तो कोई पैरेलल यूज कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। मॉडल मेकिंग का जो सामान है उसी को यूज करना है, कोई भी सामान से अ, हम नहीं कर सकते। स्टीलेज यूज करो, वो बेटर है। और कटर है तो हैवी ड्यूटी कटर है। और राउंड कट करना है तो ये राउंडर भी आता है कटिंग करने के लिए, ठीक है। ये दूसरे भी कुछ मटेरियल्स है, वो डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सी चीज बना रहे हैं, कौन सा मटेरियल ले रहे हैं और कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। पेस्टिंग के मटेरियल्स भी आप लोगों को पता है।
फेविकॉल, मैं ज़्यादातर फेविकॉल प्रीफर करता हूँ कोई भी चीज़ हो, और पीवीसी शीट पे काम कर रहा हूँ तो फ्लेक्स क्विक यूज़ करता हूँ। और ये सब चीज़ों को अप्लाई करने का भी तरीका है, मतलब फेविकॉल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको पूरा इवनली, जितने भी सरफेस है जहाँ पे हमको पेस्ट करना है वो पूरी सरफेस पे इवनली स्प्रेड करना है, तो वो अच्छे से पेस्टिंग होगा। अगर फेविबॉन्ड यूज़ कर रहे हैं हम, तो जो दो सरफेस को हमको पेस्ट करना है, तो वहां पे दोनों सरफेस पे फेविबॉन्ड लगाना है और थोड़ी देर उसको रखना है। तुरंत आप चिपका दोगे तो नहीं चिपकेगा, ठीक है। फ्लैक्स क्विक है तो फ्लैक्स क्विक का उसको बहुत संभाल के यूज करना है, और आई प्रिफर कि आप लोग यूज करो तो गूगल्स या ग्लासेस पहन के यूज करो, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस है। और ये जो आता है इसके ऊपर आप इंजेक्शन की जो नीडल आती है वो भी पेस्ट कर सकते हो, तो आप प्रिसाइजली इसके ड्रॉप्स यूज कर सकते हो। मटेरियल एप्लीकेशन, सबसे पहले मॉडल स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना है कि हमारे पास ड्राइंग्स है, ठीक है, हमको पता है हमको क्या करना है, कितने लेवल तक डिटेलिंग दिखानी है, क्या इंपॉर्टेंट है, सब पता है। तो एक बार स्केल फाइनल हो जाने के बाद हमको जो भी हमारा स्केल है, नॉर्मल स्केल, स्टीलेज या जो भी सेंटीमीटर वाला, उसके ऊपर हमको डिराइव कर लेना है कि हम कौन से स्केल पे काम कर रहे हैं, तो कितना mm इज इक्वल टू 1 मीटर हो रहा है, ठीक है। अगर 100 का स्केल है तो 10 mm इज इक्वल टू 1 मीटर। तो अगर ये 100 का स्केल है तो इजीली हमको याद है। कोई दूसरा स्केल है तो मतलब कई कई जगह पे 4 mm इज इक्वल टू 1 मीटर आता है, कई जगह पे 5 mm इज इक्वल टू 1 मीटर आता है, तो वो स्केल हमको माइंड में रखना है कि हम कौन सा स्केल पे काम कर रहे हैं। तो हमको कभी भी कुछ भी करना है, कटिंग या पेस्टिंग या कुछ भी करना है, तो हमको बारी बारी से जो भी हमारा ड्राइंग है वहां पे मेजर करके नहीं लेना पड़ेगा कि हाँ ये स्केल में ये सेक्शन की हाइट 16 सेंटीमीटर आ रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बारी बारी मेजर नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों के माइंड में सेट होगा कि हाँ 3 मीटर लेना है, 5 mm इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 3 लेना है तो 1.5 मीटर हो जाएगा। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा याद रखने के लिए। फिर वही चीज सब मॉडल में अप्लाई नहीं करने की, स्केल सेम हो तो कर सकते हैं, ठीक है। और स्केल फाइनल होने के बाद हमको पता करना है कि हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। हम कोई भी स्केल में कोई भी मटेरियल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हमको बड़े स्केल में काम कर रहे हैं 50 या ऐसे, तो हमको जो मॉडल बनेगा वो ऑब्वियसली बड़ा बनेगा, तो वो बड़ा मॉडल स्टेबल रहना चाहिए, मटेरियल की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और सेम मटेरियल से हम छोटा मॉडल भी नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि हमको वॉल थिकनेस भी कंसिडर करनी होती है, पैरापेट कंसिडर करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक एक स्टेप्स के लेवल्स कंसिडर करने होते हैं। तो स्केल के हिसाब से हम मटेरियल चूज करेंगे, ठीक है। फिर कौन सी थिकनेस का मटेरियल होगा, उसका कलर और टेक्सचर क्या होगा, वो आपकी डिज़ाइन के ऊपर होता है। और हम वर्किंग मॉडल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन ड्राइंग पे फोकस कर रहे हैं, जो ब्लॉक मॉडल और वर्किंग मॉडल के बीच का वर्जन है। तो वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। सपोज हमको डिज़ाइन में हमने कुछ पेविंग रखा है, तो हमको सेम पेविंग मॉडल में कैसे बनाना है, क्या करना है नहीं पता है, तो हम वहाँ पे दूसरा कुछ भी यूज कर सकते हैं कि हाँ ये कलर है या तो ये टेक्सचर है, तो ये मेरा ये वाला मटेरियल है, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। और वो चीज़ हम जूरी में या तो कभी एक्सप्लेन कर रहे हैं मॉडल को या ड्राइंग्स को, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है, ये स्केचअप का वर्जन, ये हाथ से नहीं बनाया मॉडल, जस्ट ये मटेरियल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि सेम चीज है और सेम चीज पे हम अलग अलग मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं तो उसका अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है।
तो हमको कहाँ पे कैसा मटेरियल सिलेक्ट करना है, वो अप्लाई करने के बाद वो कैसा लगेगा, आपकी डिजाइन के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मटेरियल कैसे सिलेक्ट करेंगे हम। मॉडल की रिक्वायरमेंट क्या है, डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से लेवल तक डिटेलिंग कर रहे हैं, वो सब चीजें ध्यान में रख के हम ये करेंगे मटेरियल का सिलेक्शन। अगर आपके पास सब मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपको डिजाइन में कोई ऐसा मटेरियल है या तो कुछ ऐसा है, आपने सपोज राउंड पेविंग बनाया है, तो आप वो मॉडल में कैसे अप्लाई करेंगे, वो तो रेडीमेड तो अवेलेबल होता नहीं है। तो हम ऐसा कोई मटेरियल है, हमको सॉफ्टवेयर आते हैं, हम अपना मटेरियल खुद क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये दो डिफरेंट मटेरियल है जो मैंने बनाए थे, और इसमें भी हम अपने हिसाब से स्केल के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेडीमेड आपको नहीं अवेलेबल हो रहा है और आपको जरूरत है कि नहीं ये चीज मेरे मॉडल के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपना मटेरियल खुद से क्रिएट कर सकते हो। प्रिंट आउट निकालो, या तो स्टिकर पेपर आता है उसके ऊपर कलर प्रिंट लो और डायरेक्टली पेस्ट कर दो, या तो कोई शीट है उसके ऊपर डायरेक्ट प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, एक एडवांटेज है। बेस बना रहे तो वापस से मॉडल का कौन सा स्केल है, कौन सा मॉडल है, कितनी डिटेलिंग है, उसके ऊपर से हम फाइनल करेंगे कि बेस कैसा होना चाहिए, कैसे मटेरियल का होना चाहिए और कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मैंने ज्यादातर जितने भी मॉडल्स बनाए उसमें हार्डवुड यूज किया है, या तो फिर बेकेलाइट, ये बीच वाला जो है ये बेकेलाइट शीट है, ये लास्ट वाला हार्डवुड है, ये कॉर्रुगेटेड शीट है, और ये प्लास्टिक का शीट है, ठीक है। तो हमारा बेस उतना होना स्ट्रांग होना चाहिए जो हम जो मॉडल है उसका लोड कैरी कर सके। ऐसा नहीं कि ऐसा पूरा बैंड हो गया, आपने बनाया मॉडल अच्छा मस्त और आप उठाने गए या तो कहीं से कहीं ले जा रहे हो, कॉलेज ले जा रहे हो तो बैंड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉडल्स का बेस स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ मॉडल्स ऐसे भी होते हैं जिनका बेस नहीं होता है, बिना बेस के भी मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। ये जो डिजाइन है ये मेरा ग्रीन स्टूडियो का बिल्डिंग है, ब्लॉक मॉडल है, ये पीवीसी शीट से बनाया है और ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स इंडिकेट कर रहे हैं। आपके पास स्केल डिसाइड हो गया है, मटेरियल डिसाइड हो गया है, बेस का कैसे करना है वो डिसाइड हो गया है, अभी स्टार्ट कैसे करना है। तो हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि जैसे हम एक्चुअल साइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, जितना भी हमारा प्लिंथ एरिया है वो बेस के ऊपर फिक्स होने वाला है, और जो भी बिल्डिंग्स है वो हम अलग से बना के उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट इमेज है इसमें हार्डवुड का बेस है और उसके ऊपर ये बेसमेंट लेवल आ रहा है, इसके लिए पूरा थर्मोकोल लगाया है। बेस मेरा वुडन है बट मैंने थर्मोकोल क्यों यूज किया है, क्योंकि मेरे को लेवल डिफरेंस की जरूरत थी, ठीक है। मैं ये वुड के अंदर कट आउट नहीं कर सकता। तो आपकी डिजाइन में, आपके सेक्शन में जो सबसे बॉटम का लेवल है वो आपका जो भी बेस है वो लेवल होगा, और उसके ऊपर आपके जितने भी लेवल्स होंगे वो ऐड करने होंगे। फिर उसके ऊपर जो भी मटेरियल आ रहा है वो अप्लाई होगा। फिर रोड आ रहा है, ग्रीनरी आ रही है, पेविंग आ रहा है, राइट। फिर कटिंग ऑफ सरफेस, यहाँ पे भी उसी पे कट कर रहे हैं। कोई भी मॉडल है, कुछ भी सरफेस हम कट कर रहे हैं बेस के बाद, तो कटिंग उसका प्रिसाइज होना चाहिए और शार्प होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए।
कटिंग करते टाइम हमारी ब्लेड कटर की है वो शार्प है या नहीं, वो बारी बारी देखते रहना पड़ेगा, तो ही अच्छा कटिंग होगा और फिनिशिंग में मॉडल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो, ये परगोलास और यहाँ पे ये ऑन प्रोसेस मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे जो मटेरियल का दिखाया था वो यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन कलर्स है। तो ऐसा है, कटिंग करें तो कटर को कैसे होल्ड करना है। आपका जो हैंड है वो पूरा जो भी सरफेस या जिसके भी ऊपर आप कटिंग कर रहे हो, वो आपका हैंड वो सरफेस के ऊपर पूरा टच रहना चाहिए, और कटर को पेंसिल जैसे होल्ड करते हैं वैसे पकड़ना है। और हमको ध्यान रखना है कि ये जो कटर की ब्लेड है वो एग्जैक्टली 90 एंगल पे हो। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आपका कटिंग भी टेढ़ा मेढ़ा होगा, और जब पेस्टिंग करेंगे हम तो वो एग्जैक्टली 90 एंगल पे पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कटिंग के टाइम पे हमको पेस्टिंग का ध्यान में रख के कटिंग करना है। सपोज आपका 4 स्टोरी बिल्डिंग है और आपको ब्लॉक मॉडल बनाया, तो फिर मतलब अंदर का डिटेल नहीं दिखाना है, सिर्फ आउटर डिटेल दिखाना है। तो आप एक एक फ्लोर को अलग अलग नहीं बना के पूरा एक वॉल बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में तो हमको बाहर से पूरा एक ही दिखने वाला है, तो अंदर की डिटेल नहीं बना के हम पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे जहाँ पे ओपनिंग्स और जो भी आ रहा है वो सब डिटेल्स होंगी फ्रेम के ऊपर। और जहाँ पे जरूरत पड़े वहां पे हम स्लैब डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बालकनी है तो यहाँ ऐड किया हुआ है स्लैब, तो हमको पता चले। तो जब भी हम कटिंग करें तो हमको माइंड में रखना है कि कौन सी सरफेस कहाँ से जा रही है, कितनी हाइट की है, कितने फ्लोर की है। सपोज हो सकता है कि ये हाफ पोर्शन 4 स्टोरी है और ये हाफ पोर्शन 2 स्टोरी है, तो वो जो सरफेस कट होगी वो इस तरीके से कट होगी, एल शेप में। तो वो आप थोड़ा सोच के फिर कटिंग करो तो आपका मॉडल फिनिश्ड लगेगा, ज्यादा जॉइंट्स नहीं दिखेंगे। पेस्टिंग करते टाइम जैसे हमने कटिंग करते टाइम देखा कि हमारा कटर 90 एंगल पे होना चाहिए, एग्जैक्टली वर्टिकल, तो जो भी हम मटेरियल कट कर रहे हैं वो प्रॉपर कट होगा। और जब हम पेस्ट करेंगे, 2 सरफेस कट हो गई है, अब उसको पेस्ट कर रहा है, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना है कि वो सरफेस 90 एंगल पे पेस्ट हो रही है, वर्टिकली 90 एंगल पे। ठीक है, जैसे साइड पे हम काम कर रहे हैं तो प्लम्ब अब यूज करते हैं, सही सरफेस जा रही है या नहीं देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो वैसे भी हम सेट स्क्वायर यूज कर सकते हैं, या तो खुद का टूल भी बना सकते हैं 90 एंगल बना के। तो हमको ऑलवेज ध्यान में रखना है कि हम जो भी कटिंग कर रहे हैं या तो पेस्टिंग कर रहे हैं वो 90 एंगल पे हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका मॉडल फिनिश दिखने लगेगा। ठीक है, और कटिंग के लिए एक और चीज मैं बोलूंगा कि आप जब कटिंग करें तो ऐसा मत सोचो कि एक बार में ही पूरा कट हो जाना चाहिए। पहले हाफ कट लगाओ, थिक शीट है तो 2-3 बार कट लगाओ, एक बार में उसको कट करने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे कट करोगे तो वो अच्छे से कट होगा पूरा। ओके, इट इज एन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन विथ डिफरेंट मटेरियल्स एंड जॉइनरी डिटेल्स। जैसे हमको साइड पे एग्जीबिशन करना है, वॉल बनानी है, तो हमको सिखाते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कि ब्रिक बॉन्ड्स कैसे होते हैं, उसकी जॉइनरी कैसे होती है, मोर्टार कैसे लगता है। ठीक है, कॉलम बीम का जंक्शन कैसे होता है, बीम के साथ कॉलम कैसे फिक्स होते हैं। तो वो जो जॉइनरी डिटेल है वो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के लिए है। हम यहाँ पे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, हम एक्चुअल दिखे वैसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं विथ डिफरेंट मटेरियल्स, तो उसके लिए हमारी जॉइनरी डिटेल्स भी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमको ध्यान में रखना है कि हम कौन सी चीज कैसे कट कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं। मॉडल
आपका बेस रेडी है, फिर आपका स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो भी है वो रेडी है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पे आपका मॉडल खत्म नहीं हो जाता। मॉडल को लाइव इंटरेक्टिव बनाने के लिए और भी चीज़ें हैं जो ऐड करनी ज़रूरी है। जैसे हम ड्राइंग में ऐड करते हैं, ट्रीज बनाते हैं, ह्यूमन फिगर्स डालते हैं, ठीक है, व्हीकल्स है, स्ट्रीट लाइट्स है, ये सब चीज़ें भी ऐड करने से आपका जो भी मटेरियल है, क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, कैसे होने वाली है, वो सब सामने वाले को दिख जाएगा। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटीज है कि यहाँ पे स्टेप्स है, तो सिर्फ आने जाने के लिए नहीं है, बैठ भी सकते हैं यहाँ पे, खेल रहे हैं, तो ये ह्यूमन फिगर का इम्पोर्टेंस। फिर ट्रीज, ट्रीज डालो डिजाइन के हिसाब से, वो भी ट्रीज भी अलग अलग हम बना सकते हैं कि हमारा मॉडल कैसा है, रिक्वायरमेंट कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वो भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम उसका कलर, थिकनेस, प्रोपोर्शन, साइज सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ट्रीज है, ये यहाँ पे डिफरेंट ट्रीज है। स्ट्रीट लाइट्स है, यहाँ पे ये वर्किंग मॉडल है, यहाँ पे इसलिए स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, लाइटिंग की है। हम सिर्फ ऐसे भी रख सकते हैं। दूसरा व्हीकल्स, तो हमको मूवमेंट एरिया पता चलेगा कि कहाँ पे कैसी मूवमेंट होने वाली है, रोड है, कितने लेंथ का रोड है। तो जितना हम डिटेल में दिखाएंगे उतना एक्सप्लेन करने का कम हो जाएगा, वो देख के सामने वाला समझ जाएगा। फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि सर मैम ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ज्यूरी में, क्योंकि आपको ये डिजाइन ही इतना बोल रही है, आपका वर्क ही बोल रहा है। इसके अलावा दूसरे टाइप के मॉडल्स भी होते हैं, जैसे ये है फोल्डिंग। यहाँ पे ये बहुत ट्रिकी वर्क है। कटिंग, ये पूरा फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर कटिंग किया है और उसको हम फोल्ड करेंगे तो ये डिजाइन ऐसे एम्बोज होके आती है। फिर इसके अलावा दूसरा मॉडल भी आता है, लेगो का मॉडल। ठीक है, मॉडल्स फॉर डिजाइन डेवलपमेंट। अभी ये अब तक हमने जो बात की वो क्या था कि आपके पास डिजाइन रेडी थी और उसके बाद आपने अपने डिजाइन के हिसाब से मॉडल बनाया। बट कुछ मॉडल्स हमको डिजाइन बनाने से पहले भी बनाने पड़ते हैं कि हमको कैसी डिजाइन बनानी है, वो कॉन्सेप्ट भी हम मॉडल में से मॉडल बना के डिराइव कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा फ्रैंको गैरी, उनकी डिजाइन मॉडल पे से ही डिराइव होती है। पहले मॉडल बनता है फिर डिजाइन बनती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर से कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है, क्रिएटिव थिंकिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब चीज़ें तो ठीक है। इसके अलावा हमको डिटेल पे फोकस करना है। कोई भी मॉडल बनाए हम, तो जैसे पहले बात की कि वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किसके लिए बना रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या एक्सप्लेन करना है हमको, उसके हिसाब से उसकी डिटेलिंग होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जो शीट है या तो पीवीसी शीट है, बॉक्स बोर्ड है, चौको शीट है, उसमें से ही हम मॉडल बना सकते हैं। हम अगर हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो हम उसके हिसाब से भी हमारा मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं या तो बना सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये एंड है, उसका एब्स्ट्रैक्शन बनाया है, तो ये एक्चुअल एंड है। और ये जो फर्स्ट मॉडल है, यहाँ पे एक्चुअल एंड जैसा कुछ फॉर्म है, ये बीच का स्ट्रक्चर है और उसके लेग्स है ऐसा। फिर उसके आगे बढ़ के ये दूसरा आ गया कि ये पूरा बाम्बू स्टिक से बीच से होलो एयर और उसके अंदर से वायर जा रहा है। फिर उससे भी आगे ये मटेरियल चेंज हो गया और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन हो गया। मतलब ये सेम चीज़ हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में भी अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ कैसा हो रहा है, क्योंकि मटेरियल चेंज होने से वो
उसकी जो भी सेंस है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी ये डिफरेंट डिफरेंट है। ये पूरा एंड का स्ट्रक्चर है, इसका ये पूरा एब्स्ट्रैक्शन है, ओरिगामी में से डिराइव किया हुआ है। ये भी डिफरेंट मटेरियल से है। दूसरा एग्जांपल है, ये स्ट्रक्चर पता ही होगा सबको। ठीक है, यहाँ पे एक और ये दो है, यहाँ पे ट्रीज नहीं है और यहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं, तो ये दोनों की फील डिफरेंट है। ये थोड़ा इंटरेक्टिव लाइव लग रहा है, ये जस्ट बॉक्स लग रहा है। और दूसरा मटेरियल चेंज, सेम चीज मटेरियल अलग है, फर्नीचर के साथ है, ह्यूमन फिगर्स है, तो ये ज्यादा इंटरेक्टिव लग रहा है। ठीक है, तो छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करने से वो हमको जो आपकी डिजाइन की सेंस है वो फील होती है। कुछ एग्जांपल्स है आर्किटेक्ट्स के वर्क के, जो मॉडल्स के ही एग्जांपल्स है सब। लुइस कान की डिजाइन है, ये आर्किटेक्ट्स के वर्क इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझना जरूरी है कि मॉडल कितना इम्पोर्टेंट है। और सब बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स है, फेमस आर्किटेक्ट्स है, वेल नॉन, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो लोग भी मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो हमको तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फ्रैंक लॉयड राइट, उनका भी ये मॉडल है। आर्किटेक्ट्स के मॉडल है वो मोस्टली वुड में से बने होते हैं, क्योंकि ये उनकी फाइनल डिजाइन है। और अगर उनका ऑन प्रोसेस मॉडल होगा वो भी वो लोग वुड में से बनाते हैं। संगाज पीवी दोषी का बना रहे हैं। ठीक है, फ्रैंको गैरी का डिजाइन, मतलब मॉडल इज मस्ट। ली कॉर्बुजियर, एक्चुअल हम मॉडल को हाथ में लेके देख सकते हैं, घुमा के देख सकते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, राज रेवाल का है। एक्चुअल में कैसा लाइटिंग होने के बाद नाइट टाइम में कैसा दिखेगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे जॉइंट हो रहा है। एंजो पियानो, ये म्यूजियम है, ये प्रोसेस मॉडल है सब। यशवंत सर के वहाँ पे मैंने काम किया है, मुझे थोड़ी डिटेल्स पता है सब की, मतलब। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये स्लैब और बीम का पूरा पीस है, ऐसे वर्कआउट है। ये पूरा कॉनिकल शेप है और ये इंक्लाइन कॉलम्स है सब, और ये दोनों कंबाइन होके ये स्ट्रक्चर बन रहा है, और उसके ऊपर ये पूरा कॉनिकल शेप। तो ऐसे ये डिजाइन है। दूसरा ये है, हाउस है। तो मॉडल बनाएंगे तो हमको पता चलेगा, ये जो सब चीजें हैं हम सिर्फ ड्राइंग पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और ना ही 3D पे डिपेंडेंट रह सकते हैं कि हाँ 3D में ऐसा हो रहा है तो ठीक है। जब तक हम खुद से बनाएंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा, अंडरस्टैंड नहीं होगा। ये सब चीजें हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले है। ठीक है, फिर ये पूरा एक प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। 5 स्टार होटल का मॉडल है ये। ठीक है, ये पूरा 2 फ्लोर का स्ट्रक्चर है, और ऊपर भी दूसरे फ्लोर है। ठीक है, ये पूरा स्लैब यहाँ पे रखा है और उसको
वर्टिकल सपोर्ट्स जो भी आउटर डिटेल बनानी थी इसमें, तो उसके हिसाब से जैसा शेप आ रहा है, जैसी वॉल आ रही है, वो पेस्ट किया हुआ है। ये इंटरेस्टिंग चीज है। हमको ये सोचना है कि हम कौन सा वर्क कर रहे हैं, उसको जल्दी कैसे करना है और स्मार्टली कैसे करना है। सपोज आपको ये वॉल्स कटिंग करनी है, ठीक है, तो इतनी सारी ये पूरे मॉडल में बहुत सारी आने वाली है, तो हर बार हम मेजरमेंट लेके कटिंग करने बैठेंगे तो 1 महीने में खत्म नहीं होगा। तो हमको अपना खुद का टूल क्रिएट करना है ताकि हम अपना काम फास्ट कर सकें। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो दिख रहा है, देसी लैंग्वेज में इसको गेज बोलते हैं, कि इसके हिसाब से यहाँ पे हमने कोई भी कट करना है मटेरियल, तो यहाँ से यहाँ तक लगा दिया और फिर कट कर दिया, तो वो हर टाइम सेम मेजरमेंट में ही कट होगा। फिर ये नीचे का पोर्शन है और ये ऊपर का, दोनों कंबाइन होके पूरा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। ये है, ठीक है। और जितना कटिंग प्रिसाइज होगा आपका और पेस्टिंग पे ध्यान दोगे वर्टिकल 90 एंगल पे, तो आपका मॉडल ऑटोमेटिकली फिनिशिंग में दिखने लगेगा। और ये फाइनल मॉडल बन गया। इतना बड़ा था कि ये टेरेस से नीचे उतारना पड़ा, दरवाजे से नहीं जाने वाला था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस है, ये OHP शीट पे प्रिंट आउट लगा के ये की है, क्योंकि उसको ये डिटेल उसके लिए इम्पोर्टेंट थी कि उसको ये सेम डिटेल ऐसे ही चाहिए थी। तो उसके लिए जो ड्राइंग्स था उसका, उसमें से ये प्रिंट आउट निकाली है और फिर OHP शीट पे और यहाँ पे पेस्ट किया है, तो एग्जैक्टली हम दे सकते हैं। ये दूसरा बिल्डिंग है, सीग्राम बिल्डिंग, मिस वेंडरो। ये पूरा PVC का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर OHP शीट है और उसके पीछे ब्लू कलर का पेपर है, इसलिए ये ब्लू दिख रहा है। और PVC शीट है, उसके ऊपर भी ये प्रिंट आउट है, ये जो लाइंस दिख रही है ये सब। कॉर्नर्स शार्प होने चाहिए, कटिंग शार्प होगा तो ऑटोमेटिकली कॉर्नर्स शार्प हो जाएंगे। लेवल को अंडरस्टैंड करना है, कौन सा लेवल कहाँ पे है, कैसा है। विला कापरा मॉन्यूमेंट, स्लोपिंग रूफ है, तो मतलब हिस्टोरिक बिल्डिंग है, तो वो उसकी फील भी आनी चाहिए कि हाँ हिस्टोरिक है। तो ये पूरा PVC का मॉडल था और उसके ऊपर ये येलो कलर का पेपर कटिंग करके ऊपर से लगाया है। और ये जो रूफ है वो वाइट शीट थी और उसके ऊपर कलर किया है। और ये स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे स्टैच्यूज, और ये उसको अंदर की डिटेल एक्सप्लेन करनी थी, तो ऊपर से ये रूफ ओपनेबल रखा है, तो अंदर का देख सके और एक्सप्लेन कर सके। आयोनिक ऑर्डर का कॉलम है, मतलब इसके उतनी एग्जैक्ट डिटेल बनाने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन ले लिया है कि हाँ ये देखने से पता चल रहा है कि आयोनिक ऑर्डर का ये कॉलम है, बट एग्जैक्टली नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये भी देखना है कि कौन सी चीज का कितना इम्पोर्टेंस है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है यहाँ पे सब डिटेल्स आती है, तो उतनी डिटेल्स नहीं चाहिए क्योंकि ये स्केल भी छोटा है। उतनी ज्यादा डिटेल करेंगे तो स्केल बड़ा करना पड़ेगा, तो स्केल के ऊपर भी कितनी डिटेल आएंगी वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये एविएशन म्यूजियम का मॉडल है। इसमें ये वॉल पूरी इंक्लाइन है, वर्टिकल नहीं है, स्पेसिफिक एंगल पे इंक्लाइन है सब जगह से। अब तक का सबसे चैलेंजिंग वर्क था ये,
मेरे लिए। और उसका ये रूफ है वो ग्रिड है, बट कर्व फॉर्म में है पूरी। ठीक है, लाइंस कर्व है और उसका शेप भी कर्व जा रहा है। तो ये बनाने में मजा आएगी। दूसरा, ये एविएशन म्यूजियम है, तो ज़्यादा फील आने के लिए यहाँ पे मॉडल्स भी रखे हैं एरोप्लेन के। ये सब डिटेल है। उसके लिए ये रूफ का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। और ये सरफेस इस इंक्लाइन है पूरी। ठीक है, और उसकी डिज़ाइन में यहाँ दो रिब्स जा रही थी और उसको कनेक्ट किया था, तो वो डिफाइन करने के लिए बीच में हाफ कट लगाया है। ये हैंड कटिंग नहीं है, ये लेजर कटिंग है। दूसरा, ये जो मॉडल है ये पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर जो सिस्टम है उसके बेस पे रिलेटेड है। इसमें ये जो वॉल्स दिख रही है ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर की वॉल्स एक्चुअल वॉल नहीं है, ये सिर्फ ओएच की शीट है। इसके ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है। जो भी लोड आ रहा है ये वो अंदर के जो ये कॉलम्स दिख रहे हैं उसके ऊपर जा रहा है पूरा मॉडल का। ये सिर्फ कवर कर रहा है मटेरियल। यहाँ पे ये पार्किंग शेड्स भी बनाए हैं वायर मेश में से। ये पूरी ग्रीन वॉल है, तो पीवीसी शीट के ऊपर ट्री का ये जो आता है वो लगाया है। फिर ये ऐसा शेप के पार्किंग शेड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज जहाँ पे जैसी जरूरत है, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। दूसरा ये है, आप इतना प्रिसाइजली कटिंग करो और पेस्टिंग करो। दो ही चीज इंपॉर्टेंट है मॉडल मेकिंग में, कटिंग और पेस्टिंग। ये दो चीज में आप ध्यान रखोगे तो आपका मॉडल ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्लास बन जाएगा। और बाद में उसका डिटेलिंग, ट्रीज है और ह्यूमन फिगर्स है वो सब। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये बालकनी का रेलिंग जैसा, ये शीट पीवीसी की शीट पूरे पूरी है और यहाँ पे सिर्फ ये ड्रॉ कर दिया है, फिर भी ये फील आ रही है बालकनी की। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे अप्लाई करनी है। सेम मॉडल है, ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे एनलार्ज करके ओपनेबल किया है पूरा। तो अंदर की सब डिटेल्स, कहाँ पे क्या कॉलम है, कहाँ पे वॉल है, कहाँ पे ओपनिंग है, ये सब दिख रहा है। और जहाँ पे डोर विंडोज है वहाँ पे ये ओएचपी शीट पेस्ट की है, तो अगर हम पूरा स्लैब लगा दे तो हम पूरा एक मॉडल दिखे बाहर से। ठीक है, ये पूरा स्टेप्स ये स्केल के हिसाब से है, इसलिए स्केल फाइनल होने के बाद मटेरियल सिलेक्ट करना है कि मटेरियल की थिकनेस क्या होगी, तो आप इजीली लेवल्स दिखा सकते हैं। ये एक राइजर है, ये 2 mm का है, तो उसके हिसाब से ये पूरा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा जो एग्जैक्टली आपकी डिजाइन में है वैसा ही। फिनिशिंग में शांति से सब मटेरियल को कट करने के बाद ये ध्यान से पेस्टिंग होनी ज़रूरी है, तो ये एग्जैक्टली हमको जो चाहिए वो बन सकता है। ठीक है,
एक्चुअल बिल्डिंग हो वहाँ पे जाके हमने फोटोग्राफी का वेबिनार भी आप लोगों ने अटेंड किया है। ये दूसरा इंटरेस्टिंग मॉडल है, ये पूरा एक्रेलिक शीट पे बनाया हुआ है। ये पूरा ग्लास का स्ट्रक्चर है और ये ओपनेबल है। ये रूफ को हम निकाल के अंदर का पूरा डिटेल देख सकते हैं। क्रूज टर्मिनल है तो साथ में क्रूज भी बनाई है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा नीचे बेसमेंट का पार्किंग है, तो नीचे से पूरा हॉलो है और उसके ऊपर ही ये पूरे मॉडल का लोड आ रहा है। तो इसमें भी एक्चुअल जो कॉलम पोजीशन होगी उसके हिसाब से ये सेट है, ऐसा एक्स्ट्रा सपोर्ट या ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्पेस फ्रेम थी, तो ये स्पेस फ्रेम के लिए ये प्लास्टिक की नेट आती है वो यूज की है। और उसके कॉलम के लिए ये एल्यूमिनियम का रॉड है, राउंड सेक्शन, उसको यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे हम पेपर का भी यूज कर सकते हैं, राउंड करके फुल करके कुछ भी, मतलब हम कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसी जरूरत है, कैसी अवेलेबिलिटी है मटेरियल की, उसके हिसाब से हमको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि कहाँ पे हम क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं। पूरा ये सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक्चुअल एग्रीगेट्स के सब यहाँ पे पेस्टिंग किया हुआ है, तो वो एक्चुअल फील दे रहा है कि हाँ ये क्या जगह है, कैसी है। और ये जो पूरा सी है यहाँ पे, ये पूरा पीवीसी का ओएचपी शीट का रोल आता है पूरा। एग्जैक्टली ओएचपी शीट नहीं होती, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है प्लास्टिक जैसी और ट्रांसपेरेंट होती है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का नीचे पेपर लगाया हुआ है, जो हम बर्थडे में रिबिन जो आती है वो सेम मटेरियल का पेपर है। तो ये हमको वेवी इफेक्ट दे रहा है यहाँ पे। उसके ऊपर ये पूरा प्लास्टिक लगा है और उसके ऊपर ये कॉलम्स है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये रियल में वाटर का सीन है। ये पूरा स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्शन आ रहा है अंदर, ये पूरा जो ब्रिज है उसका आ रहा है यहाँ पे। और ये छोटी छोटी डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट थी, यहाँ पे ये वुडन के कॉलम है ऊपर, वापस नीचे ये एल्यूमिनियम के है यूज किए, ऊपर वुडन के यूज किए हैं। और ये पूरी जो फ्रेम है एक्रेलिक की, उसके ऊपर ये पेपर के ऊपर जो उसकी डिजाइन थी उसके हिसाब से ये कटिंग करके पेस्ट किया हुआ है। ये यहाँ पे जो दिख रहा है। दूसरा ये लैंडस्केप का मॉडल था, अलग अलग जोन है, अलग अलग चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। यहाँ पे हम मेड़ो भरा એવું कहिए एना જેવું यहाँ पे ये पूरा है कि ट्री से यहाँ पे ऐसे पताके लगा है, सब यहाँ पे नीचे सब लोग इकट्ठा होके बैठ सके, तो वो मॉडल में भी फील आनी चाहिए कि कौन सी जगह है, कैसी स्पेस है। यहाँ पे वाटर बॉडी है तो अगेन रिफ्लेक्शन होना चाहिए इस टाइप से। टेंसाइल स्ट्रक्चर है यहाँ पे पीछे सब, एम्फी थिएटर है। ठीक है, ये लैंडस्केप का मॉडल है, तो लैंडस्केप है तो जो भी ग्रीनरी है, वेजिटेशन है, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे पूरा परगोला है, उसके ऊपर ये क्रीपर्स और वो सब दिखाने के लिए ये ऐसा किया है। यहाँ पे ये छोटा प्लांटेशन जैसा है, ये वॉकवे के दोनों साइड पे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे प्लांटेशन है। दूसरा ये एक्सपेरिमेंट था डिफरेंट मटेरियल से, ये पीओपी का मटेरियल है। स्टेडियम का एक स्ट्रक्चर है ये वाला, और ये रिपीट होके पूरा स्टेडियम कंप्लीट हो रहा है। ऐसा ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्टेप्स है, इसके लिए एंगुलर है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, तो ये पूरा असेंबली का मॉडल है।
यहाँ पे क्रू का थ्रेड वाला रॉड लगाया हुआ है और पीओपी है, और उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अंदर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के जैसे वायर्स भी यूज किए हुए हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहे। और इसके लिए भी हमने डिफरेंट डिफरेंट कितने थिकनेस पे कितने स्टील मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फाइनलाइज किया है। ये पूरा मोल्ड है, अंदर ये वायर्स रखे हैं और ये रॉड रखा है सब, और फिर इसके अंदर हमने पोर किया था पीओपी का। दूसरा और ज्यादा चैलेंजिंग काम था, ये मेरा खुद का थीसिस का मॉडल है। इसमें मेरी डिजाइन थी, उसमें 3 स्ट्रक्चर थे, जो ये वाले 3 स्ट्रक्चर जो 360 रोटेट होने वाले थे एक्चुअल में, वो मेरे को रिप्रेजेंट करना था ये मॉडल में। ये जो बीच का है, ये पूरा काइनेटिक आर्किटेक्चर के बेस पे डिजाइन की थी, तो इसमें ये पूरा स्ट्रक्चर 360 रोटेट करना था। तो एक्चुअल मॉडल में भी वो मैंने बनाया था, नीचे यहाँ पे बेरिंग लगा के, और यहाँ पे ये ग्रे कलर का जो मटेरियल है और ये ब्राउन कलर का पाँच है, उसके बीच में थोड़ी गैप रख के, तो ये पूरा घूम सके। और दूसरा, ये भी थोड़ा चैलेंजिंग काम था, ये हैंड कटिंग है, ये लेजर कटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब हमको सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज बनानी है, कैसे बनानी है, उसके हिसाब से क्या करना होगा। नॉर्मल जो हम तपेली होती है, उसके ऊपर उल्टा रख के ये पूरा पेस्ट किया है, ये स्ट्रिप्स के ऊपर मार्किंग करके तपेली के ऊपर पूरा पेस्ट किया, फिर तपेली को निकाल के यहाँ पे पेस्ट किया है। ये पूरा हैंड कटिंग स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे मेरा ट्रीज डिफरेंट बनाया है मैंने, ये पूरा डिफरेंट थीम पे था, काइनेटिक स्ट्रक्चर था, तो इसके लिए नॉर्मल ट्रीज नहीं रिप्रेजेंट किए है। अगेन, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडल, ये स्लाइड मैंने रिपीट की है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आर्किटेक्चर में। और एक बोनस पॉइंट, ये हमने अब तक हैंड कटिंग की और हैंड मॉडल मेकिंग की बात की, और अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लेजर कटिंग है, तो ये भी हम एडवांटेज है हमारे पास यूज कर सकते हैं। बट ज्यादातर अगर और भी ज्यादा डिटेल में है, कुछ इंट्रिकेट डिटेल्स है, तो ही प्रीफर कर रहा हूँ मैं। बाकी हैंड कटिंग इज द बेस्ट थीम। लेजर कटिंग से ये बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, पूरा मॉडल है, इस्लामिक स्टडी सेंटर का है। ये पूरे एमडीएफ है, और 1 ब्रिक के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग ये पूरा स्ट्रक्चर बना है। लेजर, ये पूरा लेजर कटिंग है, सिर्फ पेस्टिंग ही किया हुआ है। तो हम अगर टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं तो हमको और भी ज़्यादा श्योर होना पड़ेगा। अगर हम हैंड कटिंग से काम कर रहे हैं तो हम कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, दूसरा कटिंग कर लो या ऐसा कर लो, कुछ भी कर लो। अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हमको पहले से 100% श्योर होना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कैसे होने वाली है। अगर वहाँ पे गड़बड़ हो गई तो पेस्टिंग के टाइम पे वो सेट नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसके लिए हैंड मॉडल मेकिंग ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मैं। सेम मॉडल है, ये भी पूरा लेजर कटिंग वर्क है। सब एलिमेंट्स को ड्राफ्ट कर लो, जितनी डिटेल में चाहिए उतना, कौन सा, उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
हैंड कटिंग से ज़्यादा लेज़र कटिंग पे ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी लाइन फुल कट होने वाली है, कौन सी लाइन हाफ कट होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग कलर कोडिंग देना पड़ता है। और अभी उससे भी ज़्यादा मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग आ गई है, इसके ऊपर भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ थोड़ा। So thank you for listening. I hope you all got some things to work on. Yes, sir. Absolutely. This was a very insightful session. Yeah, thank you. Now we open this webinar for a round of question and answers. You can ask your questions in the chat box or you can unmute yourself and speak also. हेलो हेलो Yes, ब्रिजेश, sir. Yes, sir. બહુ જ આમ કહેવાય ને, મેં એકદમ ખુશ થઈ ગયો કામ જોઈને. આપણા મિસ્ત્રી સરના ત્યાં જે વર્ક આપણે કરતા હતા તે બધા જોયા. હા. મ્યુઝિયમ, આપણું નરી ગાંધી વાળો પ્રોજેક્ટ અને Right. ઇસ્લામિક Times of સ્ટડીઝ, हाँ. લિટરલી અમેઝિંગ મોડલ મેકિંગ સ્કિલ. એક હજુ પોઈન્ટ શાયદ તું એક્સપ્લેન કરી શકે તો સ્ટુડન્ટ્સ માટે. Yes, sir. આજકાલ આપણે લાઇટિંગ ફીચર્સ એડ કરીએ છીએ બધા મોડલ્સના અંદર, हाँ, हाँ. લાઇટિંગ એડ કરીએ છીએ, તો એના Yes. બારામાં કંઈક તું શેર કરી શકે તો? લાઇટિંગ ફીચર્સ એડ કરી શકીએ છીએ આપણે. એકચ્યુઅલી મેં હજી સુધી કર્યું નથી, પણ આઈડિયા છે મને કે નોર્મલ એ સિરીઝ કનેક્શન હોય છે એમાં, એટલે એક સાથે એક જ સ્વિચથી, એક જ બેટરીથી બધી લાઇટ્સ ઓન અને ઓફ થઈ શકે. અને જે જગ્યાએ જેવા કલરની કે જેટલી ઇન્ટેન્સિટીની લાઇટ એલઈડી લાઇટ્સ યુઝ કરે છે એમાં, તો એ પ્રમાણે પણ એ વસ્તુ પ્રી પ્લાન હોવી જોઈએ. મોડલ બન્યા પછી અંદર ના થઈ શકે. આપણને કઈ જગ્યાએ લાઇટ જરૂરી છે એ પ્રમાણે કઈ જગ્યાએથી વાયર આવશે એ એક્ઝેક્ટલી એકચ્યુઅલ એક્ઝિક્યુશન જેવું જ થઈ ગયું કે આપણે સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ તો હવે પહેલેથી આપણે પ્રી પ્લાન કરીને જ પ્રોવાઈડ કરવી પડે. યસ યસ, ડેફિનેટલી. Hello, Brijesh. યસ મેમ. Yes, Brijesh, it was like walking down the memory lane with you in this webinar, and the thesis model. We remember how much you had struggled to get your design passed. It was really very good. And the first model which you showed of Brunelleschi's dome, actually, Yes, yes. I also start my teaching with the video of that dome, you know, the model, actually how Brunelleschi made the model and he exercised. It was really very good. I really enjoyed, and all the best to you in all your future Thank you. endeavors, Brijesh. Thank you. Yeah. Sir, we have a question in the chat box. Yes. Uh, Sir, it is Shweta Bain has written. It is fabulous presentation. It will be helpful for us. I just wanted to ask that if there is a deployable structure, then which materials can be used to depict that movement? If you can suggest something. Sorry, Sir, let she is me- asking about a deployable. fabulous present is a helpful. There is a deployable structure that which material can use for the movement. Can you suggest me that? Which type of movement do you want to represent? It depends on which type of movement. Can you explain? If we have Shweta here, she can just unmute herself. Like a collapsible door, like deployable structure can deploy and unfold and unfold. So can which material can we use for that? Okay. For that, again, it is depend on the scale and the detail, primary detail.
You can use PVC sheet or MDF. Uh, Actually, I have made that kind of model. I can show you. Wait a minute. It depends how durable you want to keep it and how flexible it should be. Uh, can you see the screen? Yes, sir. This is the model I have made for the research. Uh, it is like a opening or aperture of the camera or something like that. The if we switch this, we can have opening, or if we off, this is close. So this is I have made from a Aluco bond. It is a stiff material. In There is a aluminum layer for both side, and in between there is a rubber sheet. So it is stiff and as well as flexible too at the same time. So I've used this material. It can be made from MDF also, or it can be made from PVC also. We can't make it from a cartridge sheet. We can make it from acrylic sheet. It should be thick or stable material, strong material. We have another question in the chat box. Yes, If we go for a fluid form, can you suggest the material we consider? fluid form. Yes, there is uh, one model I have shown in the presentation. Uh, this material. This is a pink form. This is not a thermocol or form which is used in bed or sofa. This is something different. This can be used for, like a carving. You have a big form, or big block, or you can carve your design, whatever form you want to make. Or you can use styrofoam also. Make a structure and then sand it, sanding, sandpaper के साथ. This is PVC, but kind of styrofoam से ये बनाने के बाद हम इसको सैंडिंग करके जो भी हमको फॉर्म चाहिए वो मिल सकता है. और we can make POP also, use POP also, और काइंड ऑफ क्लोथ भी हम यूज कर सकते हैं. हमने पूरा अंदर पूरा लकड़ी का या किसी और स्ट्रॉन्ग मटेरियल का स्ट्रक्चर बना दिया, और फिर जो भी फॉर्म का हमको फ्रेमिंग चाहिए वो बनने के बाद उसको कवर करने के लिए क्लोथ को हम यूज कर सकते हैं पीओपी के साथ या तो सीमेंट के साथ. तो उसके ऊपर रखने के बाद अगर वो सूख गया, सूखने के बाद वो पूरा हमको जैसा फॉर्म चाहिए वैसा मिल सकता है. Anything else?
Did you understand what I explained? Yes, sir. Yes. Yeah. Yeah. So now I would request our Professor Isha Dalal to deliver the formal vote of thanks. Thank you, Pranjali, for the wonderful MOC. I thank architect Brijesh Mistry for sparing his valuable time for this insightful session. It was a pleasure to have you. I'm extremely thankful to all the attendees for being a part of this webinar and making it a great success. I would like to thank our principal professor Shailesh Nair sir for his exemplary support and encouragement. I also thank our Nest Trust and our chairman sir Shri Bhaskarbai Patel for constant motivation to all of us. Last but most important, I extend my gratitude to my fellow mates and the technical team who are working 24 by 7 for this webinars. Continuing the SA webinar series, next webinar is on 26th, that is next Saturday by architect Ravi Sharma on avenues in architecture. I request all the attendees to be a part of this webinar. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, Brijesh. Thank you, sir.